जहां तक हमें पहुंचना है कोई। Yes, Anirudh, what are the objectives? Objectives are the targets which we have to achieve, which organization has to achieve. Which organization has to achieve? इसके लिए मैंने कुछ typical lines आपको बताई थी कि these are the lines on the basis of what we will identify this is an objective. What are the objectives? Hina wants to answer. Yes, Hina, you can answer. Ma'am, objectives are the written statements, and these are short-term goals for an organization, which a company wants to achieve. Very good. These are written statements. These are short-term. What else? एक और line है. एक और line बताई हुई है आपको. Anyone else? Objectives. Okay, Hina. Yes, Hina, bete. Ma'am, these should be clear and should be measurable. Very good. It should be clear and measurable objectives होते हैं जिसको हम measure कर सकते हैं. What we want to achieve? We want to achieve the objective of increase in sales by 10%. Increase in sales by 10%. So we can measure कि हमारा objective क्या है हमारा ऑब्जेक्टिव. हमारा ऑब्जेक्टिव है कि सेल को 10% से इंक्रीज करना. क्लियर, कंसाइज, written statements which guide your action. Okay, this is what is called as objective. Okay, now what about rules? What are the rules? किसी को सिर्फ देखो वही बच्चे फिर से हाथ खड़े करेंगे and rest of the students they are still sleeping. They are not revising the concept which I have taught you earlier. Drishti, yes, Drishti Bedi. It refers to the plan which tells us what is to be done and what is not to be done in a particular situation. Very good. It is the like guidelines which tell us do's, मतलब what is to be do and what is not to be done. Do's and don'ts. क्या लिखने हो? Rule. So rules will tell us what is to be done. Do this and don't do this. In a particular situation, it will be called as a rule. Hina wants to say something. Yes, Hina. Ma'am, these are specific in purpose, and if not followed, penalty is Yes, posted again. on the person. And it is supported with the penalty. In case the rules are not being followed, then some penalty is to be there, like if not followed. Next is policy. What is the meaning of policy now? Mitali, yes, beta, you can answer. Mitali. Policy is the guidelines which helps the manager to take decision. बेटे clearly सुनाई नहीं दिया. Please repeat. Policy is the general guidelines that help the manager to take decision. These are the general guidelines which guides your behavior of the manager in a particular situation, that how he should think and how he should react. That is being like guided by policy. For example, policy can be no credit policy of a company या फिर any other policy. हम इसको डिस्कस कर चुके हैं. अच्छा, ये मैंने रब क्यों कर दिया था? This is the purpose. I want to tell you the another important question. You can be asked to write the difference between rule and policy. If you have checked today in the morning before the class, I shared a PDF with you. That PDF contains very good notes about various types of plans as well as difference between the two. तो जहां पे भी difference आपको आएगा आप इस तरह से लिखेंगे basis. What are the bases of difference? And then the जिनके बीच में भी difference पूछा. That difference can be between the policy and rule. It can be between objective and strategy. Generally these are being asked. तो जिनके भी बीच में आपको difference पूछा है, you can write it. आपने एक पॉइंट तो मीनिंग ही लिख देना और एक आधा पॉइंट जो उसको
प्योरली क्लासिफाई करता हो दूसरे से, तो किस बेसिस पे आप कर रहे हो एंड देन व्हाट इज द डिफरेंस, वो आप इसमें लिख दोगे। क्लियर है बेटे सबको? इज इट क्लियर टू यू? डिफरेंस अगर आपको क्वेश्चन आता है तो आपने डिफरेंस बिटवीन इसी तरह से लिखना है। कोई बच्चे क्या करते हैं, पहले रूल लिख दिया, एक्सप्लेन कर दिया, फिर पॉलिसी लिख दी, एक्सप्लेन कर दी, यू विल नॉट गेट गुड मार्क्स इन दैट क्वेश्चन। ठीक है, डिफरेंस मीन डिफरेंस, सिंपल पूछा है मीनिंग तो यू कैन राइट इन पैराग्राफ्स। क्लियर है? इसके अलावा एक आपको बताया था मेथड। नाउ व्हाट इज अ मेथड? ओके काशवी, यस बेटे। It means the prescribed way in which the particular task is to be carried out to achieve organizational objectives. It is a particular method or ठीक है, the prescribed way in which some thing is to be achieved or the organizational goal is to be achieved, the work is to be done. So method is okay. And the next one is procedure. What is the difference between method and procedure? ये भी आपको बताना है। Raise your hand those who know the answer. Procedure. No one? Procedure नहीं पता किसी को? कनिका, हाँ जी बेटे बोलिए। Ma'am, procedure contains a series of steps, whereas a method contains a particular way in which a particular task is to be done in order to achieve a desired predetermined objective. Okay, and procedure includes Series of steps, series of methods. steps. Procedure includes method itself. ये method is a part of, कितने सारे methods are a part of procedure, they will all together make up a procedure. ठीक है, आप अपने सामने मैंने भी अपने सामने अभी वो खोला है PDF which I have sent it to you. You can also open that PDF and just have a look at if some point is being left. Okay, 2 points are being left. One is budget and other is program. तो पहले बजट डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे। What is the meaning of budget? Budget is very easy term which you may have heard a number of times. What is the meaning of budget? Can any one of you please tell me meaning of budget? Anyone? If you have heard this statement earlier. No one? बजट नहीं बेटी सुना आपने, कभी भी नहीं सुना ये वर्ड? चलिए मैं बता देती हूँ आपको। ओके, अनिरुद्ध ने सुना, ठीक है अनिरुद्ध, हाँ जी बोलिए बेटे। Budget is an annual statement in which the financial policies are written, estimates of expenditure and research. You are right. Budget is an annual statement. That is not exactly. Budget can be of 1 day. ठीक है, मेरे को आज हमने ट्रिप पे जाना है, 1 day excursion is there and I need to make a budget for the same. मतलब आज एक दिन के लिए हमने जाना है, मान लो 4 फैमिलीज हैं, हम क्लब करके अपने रिसोर्सेज वी आर गोइंग ऑन एन एक्सकर्शन एंड बाय इवनिंग वी विल बी बैक. सो फॉर दैट पर्टिकुलर ट्रिप और एक्सकर्शन हमने एक बजट बनाया. तो बजट किसी एक पर्टिकुलर टास्क का भी हो सकता है, बजट किसी एक पर्टिकुलर प्रोग्राम का भी हो सकता है, बजट किसी वीक का भी हो सकता है, मंथ का भी हो सकता है, डे का भी हो सकता है, इवेंट का भी हो सकता है. ठीक है, जैसे हमारी बेटी की शादी करनी है तो शादी के लिए बजट बनाते हैं, बेटे के मुंडन करने हैं तो बजट बनाएंगे. बजट का मतलब क्या है? हमने बजट तो बात कर ली बड़ी. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बजट? बजट मींस मैंने ये देखना है हाउ मच फाइनेंशियल रिसोर्सेज डू आई हैव व्हिच आई एम रेडी. फॉर एग्जांपल आई हैव 10 lakh rupees in my bank account for example, but I am not ready to spend 10 lakh rupees on the birthday party of my son. I'm not ready to spend. How much I am ready to spend? I'm like planning that I will spend 2 lakh rupees on the birthday party. मैं कितने पैसे खर्च करने को रेडी हूँ? 2 लाख रुपए अपने बेटे की बर्थडे पार्टी पे खर्चने को तैयार. So this is what we call जनरल लैंग्वेज में हम कहते हैं मेरा 2 लाख का बजट है, उसके अंदर अंदर ही हो जाए जो. ठीक है. So what is the 2 lakh? This is the resource which I have. एंड इस 2 लाख को मैंने बजट बनाना. अब बजट बनाना मैंने, बजट बनाना मींस मैंने मैथमेटिकल स्टेटमेंट एक बनानी है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनानी है, इन विच आई विल राइट कि इस 2 लाख के पैसे कहाँ लगेंगे.
10,000 रुपीज तो लग जाएंगे गिफ्ट में, फॉर एग्जाम्पल 5,000 रुपीज तो लग जाएंगे केक में, 10,000 रुपीज तो लग जाएंगे ड्रेसेस में, और जो भी वेन्यू बुक करवाना है मान लो 50,000 रुपए तो वहां के लग जाएंगे, 50,000 कम हो गई ना, 80,000 रुपीज मान लो लग जाएंगे उस वेन्यू के जहां पे हमने बुकिंग करवानी। सो दिस इज व्हाट इज दिस, I have this resource, how I am going to spend this money, I am going to allocate the resources, allocate means distribute। दो चीजें हम बजट में लिखते हैं, एक मैं यहाँ पे ऐसे सिंपल लैंग्वेज में लिख रही हूँ, एक मेरी इनकम कितनी है, दूसरा उस इनकम को मैंने खर्चना कैसे है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर को मैं लिखती हूँ, उसको कहते हैं बजट। ये थी मेरी इनकम 2 लाख रुपए, उसको मैंने कैसे खर्च किया वो मेरा एक्सपेंडिचर हो गया। हो सकता है मेरे पैसे बच भी जाएं इस बजट बनाने के बाद, मैंने 2 लाख सोचा था कि 2 लाख खर्चूंगी, बट मे भी मेरा खर्चा ये देखो 80, 90, 1,05,000, 10,000 और एक्स्ट्रा लगा लो, फिर भी मेरे पास यहाँ पे कितने पैसे बच गए, कितने 85,000 मेरे पास अभी भी बच गए हैं, 85,000 इज स्टिल लेफ्ट विद मी। ये मैंने ऐसे एग्जांपल लिखी। सो दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज बजट। Budget means when we write down about the income and expenditure, it is a financial statement which is being prepared to estimate the income and expenditure for a particular time period or for a particular event. ठीक है, जनरली जब हम ऐसे मैरिज के लिए बजट बनाया, बर्थडे पार्टी का बजट बनाया, पिकनिक का बजट बनाया, वो जनरली हो गया। जब गवर्नमेंट की बात करते हैं, गवर्नमेंट ने बजट बनाया, फरवरी के मंथ में जनरली आता है, दैट इज फॉर श्योर फॉर 1 ईयर। गवर्नमेंट क्या करती है, ईयरली बनाती है कि इस 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक गवर्नमेंट को कितने पैसे मिलेंगे और उस पैसे को गवर्नमेंट कहां कहां खर्च करने वाली है। दैट इज द बजट व्हिच इज बीइंग प्रिपेयर्ड बाय द गवर्नमेंट। आई रिपीट, the income which government is going to earn in that particular period and the amount where they are going to spend. सड़कें बनाएंगे, डैम बनाएंगे, फ्लाईओवर बनाएंगे, गवर्नमेंट स्कूल ओपन करेंगे, हॉस्पिटल्स को ग्रांट देंगे या एयरपोर्ट पे पैसा लगाएंगे, लाइक दिस। सो दे विल मेक अ बजट। यहाँ से पैसा आएगा, यहाँ लग जाएगा, दैट इज अ बजट। प्लीज राइट, एक लाइन लिखिए इसके बारे में। बजट इज एन एस्टिमेट ऑफ, a budget is an estimate of, a budget is an estimate of future needs, comma, arranged according to an orderly basis, covering all, क्योंकि हम बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से लिख रहे हैं तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से डेफिनेशन लिखवाई, ना कि गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, कवरिंग ऑल, और क्या लिखवा दिया मैंने, आई रिपीट, a budget is an estimate of future needs, comma, arranged according to an orderly basis, covering some or all of the activities of an enterprise मतलब एक बिजनेस, of an enterprise for a definite period of time, एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम के लिए जो हम बनाते हैं, दैट इज अ बजट। ठीक है, सो दैट बजट कैन बी, हमने एनुअल फंक्शन बनाना है स्कूल का या किसी बिजनेस में भी करते हैं वो एनुअल डे सेलिब्रेट, तो एनुअल डे का जो खर्चा है दैट इज देयर बजट फॉर दैट इवेंट। डन है बेटे, बजट क्लियर है। और सिंपल लैंग्वेज में लिखना है तो यू कैन राइट, एक और लाइन लिख लीजिए इन सिंपल वर्ड्स। इट रिप्रेजेंट्स अ स्टेटमेंट of expected results expressed in numeric terms, मतलब कोई भी प्लान, अब तक हमने जितने भी प्लान पढ़े ये सारे थ्योरी वाले प्लान थे, थ्योरी, इतना करना, ये मेथड यूज करना, ये स्ट्रेटेजी यूज करनी,
This is the only plan where we are talking about money and figures. Hina Taneja, you want to say something? You Ma'am, can. last वाली line repeat करना, it represents वाली. It represents a statement of expected results that is expressed in numeric terms. Numeric terms means maths में है ना ये numeric. Numeric terms. Numeric. NUMERIC. Numeric terms. ठीक है जी. तो मैथ्स में जिसको हम कर सके प्लान, ये सारे के सारे प्लान हमारे थ्योरी प्लान्स हैं. ये हमारा प्रैक्टिकल प्लान है पैसे वाला, जिसमें हम प्लान में पैसे के बारे में डिस्कस करते हैं कि हाउ मच मनी, फ्रॉम वेयर वी विल गेट द मनी, वेयर वी विल स्पेंड द मनी, फ्रॉम वेयर वी विल गेट, वेयर वी विल स्पेंड. दोनों चीजें हम डिस्कस करते हैं. रिपीट किया मैंने इनकम और एक्सपेंडिचर को, दैट इज द बजट. ओके, सो लास्ट वन एंड दैट इज अगेन एन इम्पोर्टेंट टाइप ऑफ प्लान, ऊपर ही लिख देती हूँ. It is called as a program. The last one which is left, program. ठीक है जी, program. Now what is the meaning of program? हमने बड़ी बार सुना होगा आज का क्या प्रोग्राम है, से पूछते हैं. मान लो आप कहीं, फॉर एग्जांपल आप कहीं, you are new to the system, you are going as a chief guest in some institution. उन्होंने आपको chief guest बुलाया, आपको बिठा लिया, आपको कहते 4 घंटे का प्लान है. अब बोलते क्या क्या 4 घंटे में क्या कराओगे इतना लंबा, तो फिर वो आपको क्या देते हैं, एक ऐसे उन्होंने कार्ड सा बनाया होता है जिसमें लिखा होता है कि सबसे पहले वेलकम स्पीच होगी, फिर वेलकम डांस होगा, सरस्वती वंदना होगी, फिर ये होगा, फिर ये प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन होगा, ये और लिस्ट ऑफ थिंग्स टू बी डन, एंड दैट इज कॉल्ड व्हाट वी कॉल अ टोटल ओवरऑल प्रोग्राम व्हिच इज फॉर्मुलेटेड. कंपनी के क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, क्या रूल्स हैं, क्या पॉलिसी है, कौन सा मेथड फॉलो करना है, प्रोसीजर क्या है, बजट क्या है, इन सबको मिला के जो एक हमारा कॉम्प्रिहेंसिव प्लान बनता है उसको प्रोग्राम कहते हैं. व्हाट डू वी कॉल इट? इट इज कॉल्ड एज अ प्रोग्राम. प्लीज राइट इट डाउन, 1-2 लाइंस लिख लीजिए प्रोग्राम के बारे में. प्रोग्राम इज अ मिक्सचर ऑफ, प्रोग्राम इज अ मिक्सचर ऑफ procedure, policies, procedure, policies, rules, assigned work, जो आपको वर्क असाइन किया गया है. ये डेफिनेशन मैं लिखवा रही हूँ, अपनी तरफ से नहीं लिखवा रही. दिस इज द डेफिनेशन गिवन बाय कूजो डोनेल, जिन्होंने मैनेजमेंट की डेफिनेशन भी दी है. आई रिपीट, program is a mixture of procedure, policies, rules, assigned work and elements necessary for operating the group of activities smoothly. ठीक है. जैसे मैं आपको और एग्जांपल देती हूँ, गवर्नमेंट ने प्रोग्राम चलाया, कोई भी ले लो एग्जांपल, सर्व शिक्षा अभियान जिसको हम कहते हैं. सर्व शिक्षा अभियान का मतलब ये हिंदी का वर्ड है, बेसिकली इट इज अ लिटरेसी प्रोग्राम. गवर्नमेंट हैज रन अ लिटरेसी प्रोग्राम जिसके अंदर उन्होंने कई सारे स्टेप्स लिए. कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज के ग्रांट बढ़ा दी, उनकी फीसेस कम कर दी, गर्ल चाइल्ड की फीस बिल्कुल माफ कर दी. कई ऐसी स्टेट्स हैं जहां गर्ल चाइल्ड को बचपन से लेके कोई पैसा नहीं देना पड़ता. सिंगल गर्ल चाइल्ड हो तो और भी बेनिफिट्स हैं, ना कोई फीस देनी पड़ती है, प्लस उनको किताबें भी स्कूल की तरफ से मिलती हैं. इन मेनी स्कूल्स इट इज गोइंग लाइक दिस. एंड देन देयर आर सम अदर बेनिफिट्स गिवन, जैसे गवर्नमेंट ने गवर्नमेंट स्कूल्स में अप टू 14 इयर्स ऑफ एज टोटल फीस माफ, कोई फीस ही नहीं लेनी. बच्चा सिर्फ आके पढ़ेगा, ऊपर से उसको बैग भी, किताबें भी, यूनिफॉर्म भी, इवन तक कि मिड डे मील भी सरकार देती है. Why government is taking all these small steps? Because all these are part of a program. कौन सा बड़ा प्रोग्राम क्या है हमारा? लिटरेसी प्रोग्राम. लिटरेसी प्रोग्राम के अंदर गवर्नमेंट ने अपना बजट बना दिया, इतना बजट लगाना है हमने. ऑब्जेक्टिव क्या है? सबको पढ़ाई करा देनी. रूल क्या है? कोई बिना पढ़े नहीं रहना चाहिए, चाइल्ड लेबर नहीं होनी चाहिए, रूल बना दिए. पॉलिसी क्या है? हर किसी को इक्वली ट्रीट करना है. मेथड कौन सा फॉलो किया? मिड डे मील शुरू कर दी, फीस माफ कर दी, लाइक दैट. और प्रोसीजर उसके साथ रिलेटेड जो भी स्टेप्स, उन्होंने सीरीज ऑफ स्टेप्स बनाए. सो ऑल दीज पॉइंट्स आर बीइंग इंक्लूडेड इन द प्रोग्राम. एंड व्हाट इज द प्रोग्राम?
program is a plan wherein the government want to literate all the people. ठीक है जी? Is it clear to you? Program clear है बेटे? Now this is my humble request to all of you. Please go through the PDF which I have sent to you today. और कुछ और नहीं तो ये difference between वाले question जरूर पढ़ना. At least give it a nice go through, and then tomorrow we will discuss keywords and case studies of these questions. ठीक है जी? Keywords और case studies हम कल करेंगे क्लास में. MCQs और वो जो वो होते हैं हमारे क्रॉसवर्ड पजल को मैं आपको होमवर्क दूंगी कल. आज का होमवर्क आपका यही है, डिफरेंस बिटवीन दीज ऑल ये आपने पढ़ते हैं. ठीक है जी बेटे? क्लियर है? कोई डाउट किसी को? नो डाउट. 3 days we have. 1 day we will take for case studies, 1 day for keywords and case studies, or 1 day for the MCQs and crossword puzzle. ठीक? That's all from my side. Thank you for your patience listening. If you want to ask anything, you can ask me now.